کیونکہ وہ عمار سے بھی وعدہ کر چکی ہوتی ہے. اب وہ کیا بلال عبداللہ سے شادی کرے گی یا عمار سے کرے گی؟ وہ بہت ہی بری حالت میں ہوتا ہے اور وہ بلال عبداللہ کا احسان کبھی بھی نہیں بھولتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا احسان زندگی پر نہیں بھولوں گا. کیا آپ میرا مرتے دم تک ساتھ دیں گے؟ کیا آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے بڑے بھائی بن کے؟ جس سے بلال عبداللہ خوش ہوتا ہے. بلال عبداللہ اس کی بہت مدد کرتا ہے، بہت خدمت کرتا ہے، لیکن وہ صدف کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. آگے جا کے صدف کو خود اس بات کا احساس ہوگا اور عمار سے شادی ختم کر کے اس کی شادی بلال عبداللہ سے ہی ہوگی. لیکن بیچ میں جو پرابلمس کریٹ کر رہی ہے وہ صرف اور صرف ہمشہ ہے. ہمشہ نہیں چاہتی صدف اور بلال عبداللہ کبھی بھی ایک ہوں. ویورس، کیا وہ ان دونوں کو ایک ہونے دے گی؟ کیا وہ صدف کی سے شادی کرے گا؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ عمار جیسا جیسا دیکھ رہا ہوتا ہے صدف کو بلال عبداللہ کے پاس جاتا ہوگا، اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کرے تو کیا کرے. آخر وہ کس طریقے سے روکے سب کچھ، لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. فی الحال وہ بے بسی سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمشہ سب نیگیٹیوٹی پھیلاتی چلی جا رہی ہوتی ہے. ہمشہ کچھ ایسا کرتی جس سے صدف بلال عبداللہ سے پیچھے ہو جائے، لیکن ویورز ایسا بھی ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں کس طریقے سے ہمشہ صدف کو وارن کرتی رہے گی، لیکن صدف اسے کلیئر کر دیتی ہے کہ بلال عبداللہ میرے لیے فرشتہ صفت سے کم نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ بہت زیادہ ہے. لیکن ہمشہ کو ایسا لگتا ہے کہ بلال عبداللہ صدف بلال عبداللہ میں انٹرسٹ لگی ہے. کیا یہ دونوں کو الگ کر پائے گی؟ کیا سب کچھ ٹھیک کر پائے گی؟ کس طریقے سے صدف کا بھائی باہر میں چلا جاتا ہے، وہاں بلال عبداللہ فون کرتا ہے اس کی ماں کو، اسے بتاتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے بیٹے کو میں صحیح کر کے صحیح سلامت یہیں پہنچاؤں گا. جس پہ وہ اسے کہتا ہے کہ آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں. اس کی ماں یہی کہتی ہے کہ مجھے اس پہ آپ پہ اندھا بھروسہ ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ وہ آپ کو ٹھیک کر کے لے کر آئیں گے. صدف آپ پہ بہت بھروسہ کرتی ہے. یہاں صدف بھی اپنی ہمشہ کو یہی بتاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو، لیکن ہمشہ اب اس کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے مسکرا کے، وہ غمگین کہہ کے بلال عبداللہ کو اپنے قابو میں کر رہی ہے. اس کو نظر آ رہا ہے بلال عبداللہ اس میں انٹرسٹ لینے لگ گیا ہے. بس کیا ہوگا آنے والے ایپیسوڈس میں؟ کیا بلال عبداللہ ہمشہ میں انٹرسٹ لے گا یا پھر وہ پرپوز کر دیں صدف کو؟ واپس آتے ہی صدف کو اس سے مائل ہو جائے گی، اس سے محبت کرنے لگے گی. صدف آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے. بلال عبداللہ اس کے بھائی کو لے کے وہاں سے باہر ملک چلا جاتا ہے اور وہاں اس کا علاج ہوتا ہے اور وہ ویل چیئر پہ ہوتا ہے. اس کے علاج کے بعد اس کے آہستہ آہستہ کیموتھراپیز تھراپیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. بلال عبداللہ اس کا علاج کروا کے واپس آئے گا اور اپنے اس کے بھائی کو ٹھیک ٹھاک کر کے لے کر آئے گا اور وہ اس کے بعد صدف کو پرپوز بھی کرے گا. وہ خود بھی ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حمزہ یہاں پہ صدف کو جینے نہیں دیتی. ہمشہ یہی کہتی رہتی ہے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ ایک انسان ہے. جس میں لڑکی اسے بھاؤ نہیں دیتی وہ اسی کے پیچھے پڑتا ہے. یہ اس کی وہ ہے. ہمشہ کا کردار اس ڈرامے میں صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پھیلانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف بلال عبداللہ کے خلاف صدف کو بھرتی رہتی ہے جس سے وہ پیچھے ہو جائے. ہمشہ کہیں نہ کہیں بلال عبداللہ کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن فی الحال ایسا کوئی سی نظر نہیں آ رہا کہ بلال عبداللہ ہمشہ میں انٹرسٹ لے. آپ کی رائے میں کیا ایسا ہو سکے گا؟ کس طریقے سے صدف اپنے بھائی کو بھیج دیتی ہے باہر ملک، وہ جاتا ہے بلال عبداللہ کے ساتھ اور وہاں ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا ہے. بلال عبداللہ اس کی ماں کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، بہت ہی جلد آپ کا بیٹا ٹھیک ہو کر آپ کے پاس ہوگا، آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں. اس پہ اس کی ماں کہتی ہے بھروسہ تو آپ پہ صدف بہت کرنے لگی ہے، اب وہ آپ پہ سب سے زیادہ بھروسہ آپ پہ ہی کرنے لگی ہے. صدف بلال عبداللہ پہ اتنا بہت بھروسہ کرتی ہے کہ اس کے بھائی کو وہ ٹھیک کر کے واپس لے کر آئے گا، لیکن یہاں ہمشہ نے ہنگامہ برپا کیا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بلال عبداللہ سے دور ہو جاؤ. تم نے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا انسان، جس پہ وہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دور رہو، تم خبردار میرے معاملات میں نہیں بولو. وہ میرے لیے فرشتہ صفت ہے اور فرشتے سے کم نہیں ہے. جو کچھ وہ ہمارے لیے کر رہا ہے وہ کسی نیکی سے کم نہیں ہے. وہ فی الحال کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی، کچھ چھپانا چاہتی ہے. ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلال عبداللہ سب کچھ بتا پائے گا یا ہمیشہ سب کے خلاف جو ہے اس کو بھڑکاتی رہے گی. ویورز، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے. ڈرامے میں ہمشہ ایک بہت ہی نیگیٹو رول ادا کر رہی ہے، وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہے اور ویورز کو دیکھنے والوں کو بہت ہی برا لگ رہا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں بلال عبداللہ کو اور صدف کو ایک ساتھ. صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ سے دل میں
अच्छा लगने लग गया है, लेकिन हमशा जो है बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है कि सदफ का दिल जो है वो मैला होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला जो है सदफ के करीब जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम इस घर में किसी की जान भी मांग लोगे तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। तो वो कहता है मुझे पहले लगता था कि लड़कियां जो है वो अनफेथ होती हैं, वो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं होती, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगा है कि फेथ भी कोई चीज़ होती है। यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है, घर आता है, मिलता है, उनका भाई ठीक हो चुका होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमेशा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती इन दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे अम्मार भी हमशा सदफ से कहता है कि ठीक है उसके बहुत एहसानात होंगे तुम्हारे पर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम उसी गाड़ी में बैठ के चली जाओ। व्यूअर्स क्या करेगी सदफ अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद आगे इस तरीके से हमशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती चली जाती है। यहाँ सदफ भी उसकी बातों में आ रही होती है ताकि उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला ने उनके लिए क्या कुछ किया है। यहाँ अम्मार उसे बताता है, उसे कहता है कि ठीक है उसने तुम लोग की मदद की, तुम्हारा ख्याल किया, सब कुछ किया, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि तुम उससे उस गाड़ी में बैठ के भी चली जाओ। ऐसा भी क्या उसने ऐसा एहसान कर दिया। व्यूअर्स आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से सदफ की माँ चाहती होगी कि बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि आप हमारे घर से किसी की जान भी मांग रहे हैं तो हम वो भी देने को तैयार हैं। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मुझे पहले लड़कियों पे भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा होने लग गया है सदफ को देख के। सदफ के उसके एहसास जागते रहते हैं। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से सदफ के भाई के साथ भी वो आता है, मिलता है, जुलता है, खेलता है। यहाँ जो है किस तरीके से हमशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी मजीद और उन दोनों के बीच में दूरियां पैदा करेगी। अम्मार कहता है सदफ से कि तुम ऐसा भी उसने क्या एहसान कर दिया तुम पे कि तुम उसके साथ ही बैठ के चली गई, अब तुम क्यों ऐसा कर रही हो, जब तुम्हारा भाई ठीक हो चुका है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। अम्मार उसके लिए मारा मारा फिर रहा होता है, लेकिन सदफ जो है वो बिल्कुल भी उसको भाव नहीं दे रही होती। बिलाल अब्दुल्ला की बहुत ही ज़्यादा वो खिदमतगुजार करनी होती है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा काम यह किया होता है, उसके भाई को सही सलामत उन तक पहुंचाया होता है, और बहुत ही ज़्यादा वो लोग उसके मशहूर भी हैं। उसकी माँ भी तहे दिल से उसकी मशहूर है और कहती है कि आपने जो एहसान हम पे किया है वो हम कभी भी नहीं उतार पाएंगे। आपने जो हमारे साथ नेकी का काम किया है उसके लिए हमारी जानें भी कुर्बान है आपके लिए। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उनसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से इज्जत से पेश आता है और उन्हें कहता है कि ऐसी बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है, ये भी मेरे भाइयों जैसा है और मेरे बाप जैसे है। वो उसके भाई को भी कहता है कि मुझे कभी कभी आपके वालिद से भी डर लगता था, क्योंकि वो मुझे कभी कभी डांट भी दिया करते थे, जिस पे वो कहता है कि वो मुझे तो कभी नहीं डांटते थे, जिस पे वो कहता है कि क्योंकि आप में कोई बुरी आदत नहीं थी इसलिए वो आपको नहीं डांटते थे, मुझ पर तो बहुत सी बुरी आदतें थी जिसकी वजह से मुझे डांट खानी पड़ती थी। व्यूअर्स आगे जाके देखिए केमिस्ट्री किस तरह से बैठी है, क्या हमशा ये सब कुछ होने देगी या नहीं। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से ये बात कहता है कि किस तरीके से मैं लड़कियों पे भरोसा नहीं करता था, मुझे लड़कियों पे अनफेथ था, लेकिन आपको देख के मुझे लड़कियों पे फेथ आना शुरू हो चुका है। वो सदफ से बहुत सी बातें करता है, सदफ को लेके जाता है डिनर पे भी, और काफ़ी सारी बातें होती हैं जो ये बातें अम्मार को पसंद नहीं आती। अम्मार उसे कहता है तुम्हारे पास उसने एहसान किया है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ उसकी माँ भी सदफ की किस तरीके से उनकी जो है वो सदफ की सारी बातें जो है वो मान चुकी होती हैं। यहाँ आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही प्यार से उसके भाई को भी सही करके वापस ले आता है और दोनों के बीच में जो है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात हमशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हमशा नहीं चाहती कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे से बात भी करें, इसीलिए वो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, जिसकी वजह से यहाँ आप देखेंगे कि क्या बिलाल अब्दुल्ला और सदफ एक हो पाएंगे, क्या हमशा ऐसा होने देगी। कुछ ठीक होने वाला होता है। बिलाल अब्दुल्ला जाविया को ठीक करके वापस लेके आने की भरपूर कोशिश करता है और उसका महंगे से महंगा तरीन इलाज करवा रहा होता है। खुद भी नशे की लत से दूर हो रहा होता है, वो नशे से दूर होना चाह रहा होता है, इसीलिए वो उसके साथ वहाँ जाता है, खुद भी ठीक होने की कोशिश करता है। सदफ को वो टूट के चाहता है, वो चाहता है कि सदफ भी उससे मोहब्बत करे, लेकिन सदफ यहाँ अम्मार को हामी भर देती है क्योंकि अम्मार की हालत जो है वो देखने के लायक नहीं होती। फिर वो सदफ सब कुछ जो है वो देख रही होती है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत भी होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो अम्मार की हालत देखते हुए खामोश रहती है। इसीलिए वो उसको शादी के लिए हाँ कर देगी, ना कि बिलाल अब्दुल्ला को। लेकिन व्यूअर्स देखना चाहते हैं अम्मार हम सदफ को और बिलाल अब्दुल्ला को एक साथ शादी के बंधन में। व्यूअर्स क्या ही दोनों एक हो पाएंगे, क्या बिलाल अब्दुल्ला प्रपोज कर दे सदफ को या नहीं। अब किस तरीके से पहुंच जाता है बिलाल अब्दुल्ला अमेरिका इलाज करवाने के लिए,
और किस तरीके से सामिया को ठीक करके वापस लेकर आता है और ख़ुद भी नशे की लत से दूर हो जाता है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होंगे जब सदफ की माँ उसको परमिशन देती है कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हो। बिलाल अब्दुल्ला अगर तुम्हें प्रपोज करता है तो तुम उसकी ऑफ़र को अवेल करो और उससे शादी करो। मैं उसकी ऑफ़र को कभी भी नहीं ठुकराऊंगी। उसने मेरे दिल में घर कर लिया है। उसने मेरे बेटे को दोज़ख से उठाकर जन्नत में ले आया है। मैं उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसने मेरा दिल जीत लिया है। बिलाल अब्दुल्ला सबके दिलों में अपनी जगह बना चुका होता है। वो वहाँ खुद भी ठीक होने की कोशिश कर रहा होता है कि वापस आके सदफ को प्रपोज कर सके, लेकिन यहाँ सदफ जो है वो अम्मार की हालत देखते हुए अम्मार को शादी के लिए हाँ कर देगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला जैसे ही वापस आएगा और जब ये सब तमाशा देखेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और तब बताएगा कि किस तरीके से वो सदफ से मोहब्बत करता है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होंगे। सावियार जो है वो बहुत ही बुरी हालत में होता है और वो बिलाल अब्दुल्ला का एहसान कभी भी नहीं भूलता और वो ये कहता है कि मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या आप मेरा मरते दम तक साथ देंगे? क्या आप मेरे साथ खड़े होंगे, बड़े भाई बनके, जिससे बिलाल अब्दुल्ला खुश होता है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी बहुत मदद करता है, बहुत खिदमत करता है, लेकिन वो सदफ को ये नहीं बताएगा कि वो उससे मोहब्बत करता है। आगे जाकर सदफ को खुद इस बात का एहसास होगा और अम्मार से शादी ख़त्म करके उसकी शादी बिलाल अब्दुल्ला से ही होगी। लेकिन बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमशा है। हमशा नहीं चाहती कि सदफ और बिलाल अब्दुल्ला कभी भी एक हो। व्यूअर्स, क्या वो उन दोनों को एक होने देगी? क्या वो सदफ से शादी करेगा? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अम्मार जैसा जैसा देख रहा होता है सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के पास जाता हुआ, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे, आखिर वो किस तरीके से रोके सब कुछ, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। फिलहाल वो बेबसी से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन हमशा सब नेगेटिविटी फैलाती चली जा रही होती है। हमशा कुछ ऐसा करती है जिससे सदफ बिलाल अब्दुल्ला से पीछे हो जाए, लेकिन व्यूअर्स ऐसा भी मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से हमशा सदफ को वार्न करती रहेगी, लेकिन सदफ उसे क्लियर कह देती है कि बिलाल अब्दुल्ला मेरे लिए फरिश्ता सिफत से कम नहीं है। उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमशा को ऐसा लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्ट लेने लगी है। क्या इन दोनों को अलग कर पाएगी? क्या सब कुछ ठीक कर पाएगी? किस तरीके से सदफ का भाई बाहर मुँह चला जाता है, वहाँ बिलाल अब्दुल्ला फ़ोन करता है उसकी माँ को, उसे बताता है कि आप फिक्र ना करें, आपके बेटे को मैं सही करके सही सलामत यहीं पहुँचाऊँगा। जिस पर वो उसे कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखें। उसकी माँ यही कहती है कि मुझे उस पर आप पे अंधा भरोसा है, मुझे इस बात का पता है कि वो आपको ठीक करेगा, करके लेकर आएंगे। सदफ वहाँ पे बहुत भरोसा करती है। यहाँ सदफ भी अपनी हमशा को यही बताती है कि ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम लोग समझ रहे हो, लेकिन हमशा अब उसकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। वो कहती है मुस्कुरा के, वो गमगीन कह के बिलाल अब्दुल्ला को अपने काबू में कर रही है। उसको नजर आ रहा है बिलाल अब्दुल्ला उसमें इंटरेस्ट देने लग गया है। व्यूअर्स, क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में? क्या बिलाल अब्दुल्ला हमशा में इंटरेस्ट लेगा या फिर वो प्रपोज कर देगा सदफ को? वापस आते ही सदफ को उसके साथ माइल हो जाएगी, उससे मोहब्बत करने लगेगी है। सदफ आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही जाती है। बिलाल अब्दुल्ला उसके भाई को लेके वहाँ से बाहर मुल्क चला जाता है और वहाँ उसका इलाज होता है और वो व्हील चेयर पे होता है। उसके इलाज के बाद उसके आहिस्ता आहिस्ता कीमोथेरेपीज भी हो रही होती हैं। बिलाल अब्दुल्ला उसका इलाज करवा के वापस आएगा और अपने उसके भाई को ठीक ठाक करके लेकर आएगा और वो उसके बाद सदफ को प्रपोज भी करेगा। वो खुद भी ठीक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमशा यहाँ पे सदफ को जीने नहीं देती। हमशा यही कहती रहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो एक इंसान है। जिसमें लड़की उससे भाव नहीं देती वो उसी के पीछे पड़ता है, ये उसकी वो है। हमशा का किरदार इस ड्रामे में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ सदफ को भरती रहती है जिससे वो पीछे हो जाए। हमशा कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करने लगी है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सीन नजर नहीं आ रहा कि बिलाल अब्दुल्ला हमशा में इंटरेस्ट ले। आपकी राय में क्या ऐसा हो सकेगा? किस तरीके से सदफ अपने भाई को भेज देती है बाहर मुल्क, जाता है बिलाल अब्दुल्ला के साथ और वहाँ ठीक होने की कोशिश करता है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी माँ को फ़ोन करता है, उसे कहता है कि आप परेशान ना हो, बहुत ही जल्द आपका बेटा ठीक होकर आपके पास होगा, आप मुझ पे भरोसा रखें। इसमें उसकी माँ कहती है भरोसा तो आप पे सदफ बहुत करने लगी है, अब वो आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा आप पे ही करने लगी है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला पे इतना बहुत भरोसा करती है कि उसके भाई को वो ठीक करके वापस लेकर आएगा, लेकिन यहाँ हमशा ने हंगामा बर्पा किया होता है। वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो जाओ, तुमने नहीं पता कि वो किस तरह का इंसान, जिस पे वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दूर रहो, तुम खबरदार मेरे मामलात में नहीं बोलो, वो मेरे लिए फरिश्ता सिफत है
اور فرشتے سے کم نہیں ہے. جو کچھ وہ ہمارے لیے کر رہا ہے وہ کسی نیکی سے کم نہیں ہے. وہ فی الحال کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی, وہ چھپانا چاہتی ہے. ویورز اب دیکھنا یہ کہ کیا بلال عبداللہ سب کچھ سب بتا پائے گا یا ہمیشہ سب کے خلاف جو ہے اس کو بھڑکاتی رہے گی. ویورز ڈرامہ سیریلس اور میرے دل کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے. ڈرامے میں ہمیشہ ایک بہت ہی نیگیٹو رول ادا کر رہی ہے, وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہے اور ویورز کو دیکھنے والوں کو بہت ہی برا لگ رہا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں بلال عبداللہ کو اور صدف کو ایک ساتھ. صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ سے دل میں اچھا لگنے لگ گیا ہے لیکن ہمشہ جو ہے وہ بیچ میں اتنی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرتی ہے کہ صدف کا دل جو ہے وہ میلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے بلال عبداللہ جو ہے صدف کے قریب جاتا ہے. اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم اس گھر میں کسی کی جان بھی مانگ لو گے تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں گی. تو وہ کہتا ہے مجھے پہلے لگتا تھا کہ لڑکیاں جو ہے وہ انفیتھ ہوتی ہیں, وہ بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی, لیکن آپ لوگوں سے مل کے مجھے ایسا لگا ہے کہ فیتھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں وہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگا ہے, گھر آتا ہے, ملتا ہے, ان کا بھائی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے, سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانا نہیں دیتی ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ عمار بھی ہمیشہ صدف سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے بہت احسانات ہوں گے تمہارے پر, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ تم اسی گاڑی میں بیٹھ کے چلی جاؤ. ویورز کیا کرے گی صدف اب ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کس طریقے سے ہمیشہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرتی چلی جاتی ہے. یہاں صدف بھی اس کی باتوں میں آ رہی ہوتی ہے تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بلال عبداللہ نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے. یہاں عمار اسے بتاتا ہے, اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے تم لوگ کی مدد کی, تمہارا خیال کیا, سب کچھ کیا, میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ تم اس سے اس گاڑی میں بیٹھ کے بھی چلی جاؤ. ایسا بھی کیا اس نے ایسا احسان کر دیا. ویورز آگے جا کے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے صدف کی ماں چاہتی ہوگی کہ بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر سے کسی کی جان بھی مانگ رہے ہیں تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. بلال عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے لڑکیوں پہ بھروسہ نہیں تھا لیکن اب مجھے بہت ہی زیادہ بھروسہ ہونے لگ گیا ہے صدف کو دیکھ کے. صدف کے اس کے احساس جاگتے رہتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے صدف کے بھائی کے ساتھ بھی وہ آتا ہے, ملتا ہے, جلتا ہے, کھیلتا ہے. یہاں جو ہے کس طریقے سے ہمیشہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے گی مزید اور ان دونوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کرے گی. عمار کہتا ہے صدف سے کہ تم ایسا بھی اس نے کیا احسان کر دیا تم پہ کہ تم اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے چلی گئی, اب تم کیوں ایسا کر رہی ہو, جب تمہارا بھائی ٹھیک ہو چکا ہے تو تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی. عمار اس کے لیے مارا پھر رہا ہوتا ہے لیکن صدف جو ہے وہ بالکل بھی اس کو بھاؤ نہیں دے رہی ہوتی. بلال عبداللہ کی بہت ہی زیادہ وہ خدمت گزار کرنی ہوتی ہے کیونکہ بلال عبداللہ نے بہت بڑا کام یہ کیا ہوتا ہے, اس کے بھائی کو صحیح سلامت ان تک پہنچایا ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ وہ لوگ اس کی مشہور بھی ہیں. اس کی ماں بھی تہہ دل سے اس کی مشہور ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے جو احسان ہم پہ کیا ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں اتار پائیں گے. آپ نے جو ہمارے ساتھ نیکی کا کام کیا ہے اس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہے آپ کے لیے. لیکن بلال عبداللہ ان سے بہت ہی زیادہ محبت سے عزت سے پیش آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ایسی بالکل بھی کوئی بھی بات نہیں ہے, یہ بھی میرے بھائیوں جیسا ہے اور میرے باپ جیسے ہے. وہ اس کے بھائی کو بھی کہتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی آپ کے والد سے بھی ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ مجھے کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے, جس پہ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے تو کبھی نہیں ڈانٹتے تھے, جس پہ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ آپ میں کوئی بری عادت نہیں تھی اسی لیے وہ آپ کو نہیں ڈانٹتے تھے. مجھ پہ تو بہت سی بری عادتیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ کھانی پڑتی تھی. ویورز آگے جا کے کہ بچی کس طرح سے بیٹھی ہے, کیا ہمیشہ یہ سب کچھ ہونے دے گی یا نہیں. بلال عبداللہ صدف سے یہ بات کہتا ہے کہ کس طریقے سے میں لڑکیوں پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا, مجھے لڑکیوں پہ انفیتھ تھا, لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے لڑکیوں پہ فیتھ آنا شروع ہو چکا ہے. وہ صدف سے بہت سی باتیں کرتا ہے, صدف کو لے کے جاتا ہے ڈنر پہ بھی اور کافی ساری باتیں ہوتی ہیں جو یہ باتیں عمار کو پسند نہیں آتی. عمار اسے کہتا ہے تمہارے پاس اس نے احسان کیا ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں, لیکن تمہیں اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں اس کی ماں بھی صدف کی کس طریقے سے ان کی جو ہے وہ صدف کی ساری باتیں جو ہے وہ مان چکی ہوتی ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ بہت ہی پیار سے اس کے بھائی کو بھی صحیح کر کے واپس لے آتا ہے اور دونوں کے بیچ میں جو ہے بہت ہی انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات ہمشہ کو بالکل بھی پسند نہیں آتی. ہمشہ نہیں چاہتی کہ وہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات بھی کریں, اسی لیے وہ بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے یہاں آپ دیکھیں گے کہ کیا بلال عبداللہ اور صدف ایک ہو پائیں گے, کیا ہمشہ ایسا ہونے دے گی. کچھ ٹھیک ہونے والا ہوتا ہے. بلال عبداللہ زاویہ کو ٹھیک کر کے واپس لے کے آنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور اس کا مہنگے سے مہنگا ترین علاج کروا رہا ہوتا ہے. خود بھی نشے کی لت سے دور ہو رہا ہوتا ہے, وہ نشے سے دور ہونا چاہ رہا ہوتا ہے, اسی لیے وہ اس کے ساتھ وہاں جاتا ہے, خود بھی ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا ہے. صدف کو وہ ٹوٹ کے چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صدف بھی اس سے محبت کرے, لیکن صدف یہاں عمار کو حامی بھر دیتی ہے. اس کو عمار کی حالت جو ہے وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی. وہ صدف سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو صرف اور صرف بلال عبداللہ سے محبت بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, لیکن وہ عمار کی حالت دیکھتے ہوئے خاموش رہتی ہے. اسی لیے وہ اس کو شادی کے لیے ہاں کر دے گی, نہ کہ بلال عبداللہ کو. لیکن ویورز دیکھنا چاہتے ہیں عمار
हम सदफ को और बिलाल अब्दुल्ला को एक साथ शादी के बंधन में। व्यूअर्स, क्या ये दोनों एक हो पाएंगे? क्या बिलाल अब्दुल्ला प्रपोज करते हैं सदफ को या नहीं? अब किस तरीके से पहुंच जाता है बिलाल अब्दुल्ला अमेरिका इलाज करवाने के लिए, और किस तरीके से जावियान को ठीक करके वापस लेकर आता है और ख़ुद भी नशे की लत से दूर हो जाता है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होंगे जब सदफ की माँ उसको परमिशन देती है कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हो बिलाल अब्दुल्ला। मार कहता है सदफ से कि तुम ऐसा भी उसने क्या एहसान कर दिया तुम पे कि तुम उसके साथ ही बैठ के चली गई। अब तुम क्यों ऐसा कर रही हो? जब तुम्हारा भाई ठीक हो चुका है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? अम्मार उसके लिए मारा मारा फिर रहा होता है, लेकिन सदफ जो है वो बिल्कुल भी उसको भाव नहीं दे रही होती बिलाल अब्दुल्ला की। बहुत ही ज़्यादा वो खिदमतगुजार करनी होती है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा काम यह किया होता है, उसके भाई को सही सलामत उन तक पहुंचाया होता है। और बहुत ही ज़्यादा वो लोग उसकी मशहूर भी हैं, उसकी माँ भी तहे दिल से उसकी मशहूर है और कहती है कि आपने जो एहसान हम पे किया है वो हम कभी भी नहीं उतार पाएंगे। आपने जो हमारे साथ नेकी का काम किया है उसके लिए हमारी जानें भी कुर्बान है आपके लिए। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उनसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से इज्जत से पेश आता है और उन्हें कहता है कि ऐसी बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है, ये भी मेरे भाइयों जैसा है और मेरे बाप जैसे है। वो उसके भाई को भी कहता है कि मुझे कभी कभी आपके वालिद से भी डर लगता था, क्योंकि वो मुझे कभी कभी डांट भी दिया करते थे, जिस पे वो कहता है कि वो मुझे तो कभी नहीं डांटते थे, जिस पे वो कहता है कि क्योंकि आप में कोई बुरी आदत नहीं थी इसलिए वो आपको नहीं डांटते थे। मुझ पर तो बहुत सी बुरी आदतें थी जिसकी वजह से मुझे डांट खानी पड़ती थी। फिर वो आगे जाकर केमिस्ट्री किस तरह से बैठी है, क्या हमशा ये सब कुछ होने देगी या नहीं? बिलाल अब्दुल्ला सदफ से ये बात कहता है कि किस तरीके से मैं लड़कियों पे भरोसा नहीं करता था, मुझे लड़कियों पे फेथ था, लेकिन आपको देख के मुझे लड़कियों पे फेथ आना शुरू हो चुका है। वो सदफ से बहुत सी बातें करता है, सदफ को लेके जाता है डिनर पे भी, और काफ़ी सारी बातें होती हैं जो ये बातें अम्मार को पसंद नहीं आती। अम्मार उसे कहता है तुम्हारे पास उसने एहसान किया है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ उसकी माँ भी सदफ की किस तरीके से उनकी जो है वो सदफ की सारी बातें जो है वो मान चुकी होती हैं। यहाँ आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही प्यार से उसके भाई को भी सही करके वापस ले आता है और दोनों के बीच में जो है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात हमशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हमशा नहीं चाहती कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे से बात भी करें, इसीलिए वो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, जिसकी वजह से यहाँ आप देखेंगे कि क्या बिलाल अब्दुल्ला और सदफ एक हो पाएंगे? क्या हमशा ऐसा होने देगी? किस तरीके से हमशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती चली जाती है। यहाँ सदफ भी उसकी बातों में आ रही होती है, ताकि उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला ने उनके लिए क्या कुछ किया है। यहाँ अम्मार उसे बताता है, उसे कहता है कि ठीक है उसने तुम लोग की मदद की, तुम्हारा ख्याल किया, सब कुछ किया, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि तुम उससे उस गाड़ी में बैठ के भी चली जाओ। ऐसा भी क्या उसने ऐसा एहसान कर दिया? व्यूअर्स, आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से सदफ की माँ चाहती होगी कि बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि आप हमारे घर से किसी की जान भी मांग रहे हैं तो हम वो भी देने को तैयार हैं। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मुझे पहले लड़कियों पे भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा होने लग गया है सदफ को देख के। सदफ के उसके एहसास जागते रहते हैं। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से सदफ के भाई के साथ भी वो आता है, मिलता है, जुलता है, खेलता है। यहाँ जो है किस तरीके से हमशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी मजीद और दोनों के बीच में दूरियां पैदा करेगी। ड्रामे में हमशा एक बहुत ही नेगेटिव रोल अदा कर रही है, वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही होती है और व्यूअर्स को, देखने वालों को बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं बिलाल अब्दुल्ला को और सदफ को एक साथ। सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला से में अच्छा लगने लग गया है, लेकिन हमशा जो है बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है कि सदफ का दिल जो है वो मैला होना शुरू होता है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ के करीब जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम इस घर में किसी की जान भी मांग लोगे तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। तो वो कहता है मुझे पहले लगता था कि लड़कियां जो है वो अनफेथ होती हैं, वो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं होती, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगा है कि फेथ भी कोई चीज़ होती है। यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है, घर आता है, मिलता है, उनका भाई ठीक हो चुका होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमेशा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती इन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे अम्मा भी हमशा सदफ से कहता है कि ठीक है उसके बहुत एहसानात होंगे तुम्हारे पर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम उसी गाड़ी में बैठ के चली जाओ। ये बस क्या करेगी सदफ अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद? कुछ ठीक होने वाला होता है। बिलाल अब्दुल्ला जावियान को ठीक करके वापस लेके आने की भरपूर कोशिश करता है और उसका महंगे से महंगा तरीन इलाज करवा रहा होता है, खुद भी नशे की लत से दूर हो रहा होता है। वो नशे से दूर होना चाह रहा होता है, इसीलिए वो उसके साथ वहाँ जाता है, खुद भी ठीक होने की कोशिश करता है। सदफ को वो टूट के चाहता है, वो चाहता है कि सदफ भी उससे मोहब्बत करे, लेकिन सदफ यहाँ अम्मार को हामी भर देती है। अम्मार की हालत जो है वो देखने के लायक नहीं होती। वो सदफ सब कुछ जो है वो देख रही होती है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत भी होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो अम्मार की हालत देखते हुए खामोश रहती है। इसीलिए वो उसको शादी के लिए हाँ कर देगी, ना कि बिलाल अब्दुल्ला को। लेकिन व्यूअर्स देखना चाहते हैं अम्मार
सदफ को और बिलाल अब्दुल्ला को एक साथ शादी के बंधन में। व्यूअर्स, क्या ये दोनों एक हो पाएंगे? क्या बिलाल अब्दुल्ला प्रपोज कर दें सदफ को या नहीं? अब किस तरीके से पहुंच जाता है बिलाल अब्दुल्ला अमेरिका इलाज करवाने के लिए, और किस तरीके से सावियान को ठीक करके वापस लेकर आता है और ख़ुद भी नशे की लत से दूर हो जाता है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होंगे जब सदफ की माँ उसको परमिशन देती है कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हो। बिलाल अब्दुल्ला अगर तुम्हें प्रपोज करता है तो तुम उसकी ऑफ़र को अवेल करो और उससे शादी करो। मैं उसकी ऑफ़र को कभी भी नहीं ठुकराऊंगी। उसने मेरे दिल में घर कर लिया है, उसने मेरे बेटे को दोज़ख से उठाकर जन्नत में ले आया है। मैं उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसने मेरा दिल जीत लिया है। बिलाल अब्दुल्ला सबके दिलों में अपनी जगह बना चुका होता है। वो वहाँ खुद भी ठीक होने की कोशिश कर रहा होता है कि वापस आके सदफ को प्रपोज कर सके, लेकिन यहाँ सदफ जो है वो अम्मार की हालत देखते हुए अम्मार को शादी के लिए हाँ कर देगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला जैसे ही वापस आएगा और जब ये सब तमाशा दिखेगा तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा और तब बताएगा कि किस तरीके से वो सदफ से मोहब्बत करता है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होंगे। सावियान जो है वो बहुत ही बुरी हालत में होता है और वो बिलाल अब्दुल्ला का एहसान कभी भी नहीं भूलता और वो ये कहता है कि मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या आप मेरा मरते दम तक साथ देंगे? क्या आप मेरे साथ खड़े होंगे बड़े भाई बन के, जिससे बिलाल अब्दुल्ला खुश होता है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी बहुत मदद करता है, बहुत खिदमत करता है, लेकिन वो सदफ को ये नहीं बताएगा कि वो उससे मोहब्बत करता है। आगे जाकर सदफ को खुद इस बात का एहसास होगा और अम्मार से शादी ख़त्म करके उसकी शादी बिलाल अब्दुल्ला से ही होगी। लेकिन बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमशा है। हमशा नहीं चाहती कि सदफ और बिलाल अब्दुल्ला कभी भी एक हो। व्यूअर्स, क्या वो उन दोनों को एक होने देगी? क्या वो सदफ से शादी करेगा? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अम्मार जैसा जैसा देख रहा होता है सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के पास जाता हुआ, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे, आखिर वो किस तरीके से रोके सब कुछ, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। फिलहाल वो बेबसी से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन हमशा सब नेगेटिविटी फैलाती चली जा रही होती है। हमशा कुछ ऐसा करती है जिससे सदफ बिलाल अब्दुल्ला से पीछे हो जाए, लेकिन व्यूअर्स ऐसा भी मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से हमशा सदफ को वार्न करती रहेगी, लेकिन सदफ उसे क्लियर कह देती है कि बिलाल अब्दुल्ला मेरे लिए फरिश्ता सिफत से कम नहीं है। उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमशा को ऐसा लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्ट लगी है। क्या इन दोनों को अलग कर पाएगी? क्या सब कुछ ठीक कर पाएगी? किस तरीके से सदफ का भाई बाहर चला जाता है, वहाँ बिलाल अब्दुल्ला फ़ोन करता है उसकी माँ को, उसे बताता है कि आप फिक्र ना करें, आपके बेटे को मैं सही करके सही सलामत यहीं पहुँचाऊँगा। जिस पर उसे कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखें। उसकी माँ यही कहती है कि मुझे उस पर आप पे अंधा भरोसा है, मुझे इस बात का पता है कि वो आपको ठीक करेगा, करके लेकर आएंगे। सदफ आप पे बहुत भरोसा करती है। यहाँ सदफ भी अपनी हमशा को यही बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो, लेकिन हमशा अब उसकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। वो कहती है मुस्कुरा के, वो गमगीन कह के बिलाल अब्दुल्ला को अपने काबू में कर रही है। उसको नजर आ रहा है बिलाल अब्दुल्ला उसमें इंटरेस्ट लेने लग गया है। बस क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में? क्या बिलाल अब्दुल्ला हमशा में इंटरेस्ट लेगा या फिर वो प्रपोज कर देगा सदफ को? वापस आते ही सदफ को उससे माइंड हो जाएगी, उससे मोहब्बत करने लगेगी। सदफ आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही जाती है। बिलाल अब्दुल्ला उसके भाई को लेके वहाँ से बाहर मुल्क चला जाता है और वहाँ उसका इलाज होता है और वो व्हील चेयर पे होता है। उसके इलाज के बाद उसके आहिस्ता आहिस्ता कीमोथेरेपीज भी हो रही होती हैं। बिलाल अब्दुल्ला उसका इलाज करवा के वापस आएगा और अपने उसके भाई को ठीक ठाक करके लेकर आएगा और वो उसके बाद सदफ को प्रपोज भी करेगा। वो खुद भी ठीक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमजा यहाँ पे सदफ को जीने नहीं देती। हमशा यही कहती रहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो एक इंसान है। जिसमें लड़की उससे भाव नहीं देती वो उसी के पीछे पड़ता है, ये उसकी वो है। हमशा का किरदार इस ड्रामा में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ सदफ को भरती रहती है जिससे वो पीछे हो जाए। हमशा कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करने लगी है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सीन नजर नहीं आ रहा कि बिलाल अब्दुल्ला हमशा में इंटरेस्ट ले। आपकी राय में क्या ऐसा हो सकेगा? किस तरीके से सदफ अपने भाई को भेज देती है बाहर मुल्क, जाता है बिलाल अब्दुल्ला के साथ और वहाँ ठीक होने की कोशिश करता है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी माँ को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि आप परेशान ना हो, बहुत ही जल्द आपका बेटा ठीक होकर आपके पास होगा।
आप मुझ पे भरोसा रखें। इस पे उसकी माँ कहती है भरोसा तो आप पे सदफ बहुत करने लगी है, अब वो आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा आप पे ही करने लगी है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला पे इतना बहुत भरोसा करती है कि उसके भाई को वो ठीक करके वापस लेकर आएगा, लेकिन यहाँ हमशा ने हंगामा बर्पा किया होता है। वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो जाओ। तुमने नहीं पता कि वो किस तरह के इंसान, जिसमें वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दूर रहो, तुम खबरदार मेरे मामलात में नहीं बोलो। वो मेरे लिए फरिश्ता सिफत है और फरिश्ते से कम नहीं है। जो कुछ वो हमारे लिए कर रहा है वो किसी नेकी से कम नहीं है। वो फिलहाल किसी को कुछ बताना नहीं चाहती, वो छुपाना चाहती है। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला सब कुछ सब बता पाएगा या हमेशा सबके खिलाफ जो है उसको भड़काती रहेगी। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। ड्रामे में हमशा एक बहुत ही नेगेटिव रोल अदा कर रही है, वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही होती है और व्यूअर्स को देखने वालों को बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि वो देखना चाहते हैं बिलाल अब्दुल्ला को और सदफ को एक साथ। सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला से दिल में अच्छा लगने लग गया है, लेकिन हमशा जो है वो बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है कि सदफ का दिल जो है वो मैला होना शुरू होता है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ के करीब जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम इस घर में किसी की जान भी मांग लोगे तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। तो वो कहता है मुझे पहले लगता था कि लड़कियां जो है वो अनफेथ होती हैं, वो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं होती, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगा है कि फेथ भी कोई चीज़ होती है। यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है, घर आता है, मिलता है, उनका भाई ठीक हो चुका होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमेशा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती इन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे अम्मा भी हमेशा सदफ से कहता है कि ठीक है उसके बहुत एहसानात होंगे तुम्हारे पर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम उसी गाड़ी में बैठ के चली जाओ। व्यूअर्स क्या करेगी सदफ अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद आगे इस तरीके से हमशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती चली जाती है। यहाँ सदफ भी उसकी बातों में आ रही होती है ताकि उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला ने उनके लिए क्या कुछ किया है। यहाँ अम्मा उसे बताता है, उसे कहता है कि ठीक है उसने तुम लोग की मदद की, तुम्हारा ख्याल किया, सब कुछ किया, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि तुम उससे उस गाड़ी में बैठ के भी चली जाओ। ऐसा भी क्या उसने ऐसा एहसान कर दिया। व्यूअर्स आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से सदफ की माँ चाहती होगी कि बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि आप हमारे घर से किसी की जान भी मांगे तो हम वो भी देने को तैयार हैं। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मुझे पहले लड़कियों पे भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा होने लग गया है सदफ को देख के। सदफ के उसके एहसास जागते रहते हैं। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से सदफ के भाई के साथ भी वो आता है, मिलता है, जुलता है, खेलता है। यहाँ जो है किस तरीके से हमशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी मजीद और दोनों के बीच में दूरियां पैदा करेगी। अम्मार कहता है सदफ से कि तुम ऐसा भी उसने क्या एहसान कर दिया तुम पे कि तुम उसके साथ ही बैठ के चली गई, अब तुम क्यों ऐसा कर रही हो? जब तुम्हारा भाई ठीक हो चुका है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? अम्मार उसके लिए मारा मारा कर रहा होता है, लेकिन सदफ जो है वो बिल्कुल भी उसको भाव नहीं दे रही होती बिलाल अब्दुल्ला की। बहुत ही ज़्यादा वो खिदमतगुजार कर रही होती है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा काम यह किया होता है, उसके भाई को सही सलामत उन तक पहुंचाया होता है और बहुत ही ज़्यादा वो लोग उसके मशहूर भी हैं। उसकी माँ भी तहे दिल से उसकी मशहूर है और कहती है कि आपने जो एहसान हम पे किया है वो हम कभी भी नहीं उतार पाएंगे। आपने जो हमारे साथ नेकी का काम किया है उसके लिए हमारी जानें भी